morning, everybody. Yes, section 3. Section 3 is related to subordinate of the courts. Subordinate of the courts. Direct question may be asked in the prelims paper or objective paper. Which one of the following provision of CPC deals the subordination of the courts? सिविल प्रक्रिया संहिता का निम्न में से कौन सा प्रावधान न्यायालयों की अधीनस्थता से संबंधित है? ऐसा ऑब्जेक्टिव पेपर में हेडिंग या टाइटल से कोई क्वेश्चन आ सकता है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड every civil court of a grade inferior that of the district court and every court of small causes is subordinate to the high court and district court both. 2 points involved in the section 3 of the CPC. District court is subordinate of high court and every civil court which is inferior to the degree of or grade of the district court and every small causes court is subordinate of the district court as well as high court. There is the dual subordination of the other civil courts like a court of civil judge, senior civil judge, etc. and small cause court are subordinate to the district court and also the subordinate of the high court. धारा 3 जो है न्यायालयों की अधीनस्थता से रिलेटेड है. टाइटल इसका न्यायालय की अधीनस्थता है. प्रत्येक जिला न्यायालय जो है वो किसका अधीनस्थ है? उच्च न्यायालय का अधीनस्थ है. प्रत्येक जिला न्यायालय उच्च न्यायालय का अधीनस्थ है और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का प्रत्येक सिविल न्यायालय और प्रत्येक लघुवाद न्यायालय जो है ये किसके अधीनस्थ है? ये जिला न्यायालय के भी अधीनस्थ है और उच्च न्यायालय के भी अधीनस्थ है. प्रत्येक जिला न्यायालय उच्च न्यायालय का अधीनस्थ है और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का मतलब सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय जो है ये और प्रत्येक लघुवाद न्यायालय जो है ये किसके अधीनस्थ है? ये जिला न्यायालय के भी अधीनस्थ है और उच्च न्यायालय के भी अधीनस्थ है. यही बात दोबारा रिपीट की हुई है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ ग्रेड इंफीरियर टू द दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोथ. जिला न्यायालय उच्च न्यायालय का अधीनस्थ है और जिला न्यायालय से निम्न श्रेणी के जो हर सिविल न्यायालय और लघुवाद न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय दोनों का अधीनस्थ है. सेक्शन 4 सेविंग. सेक्शन 4 is the saving clause, saves the certain laws or the certain remedies not affected by this civil procedure code. In the absence of any specific provision to the contrary, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect to which any special or local law now in force, any special law or local law now in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force. The civil procedure code shall not limit or otherwise affect the special law or local law or the any other time being in force law in which the special jurisdiction, special power, special procedure has been prescribed. The enforceability of the such special law or local law or the other time being in force law in which the special jurisdiction has been conferred, special power has been conferred, special procedure has been prescribed, that this general law civil procedure code shall not affect the such special law, such local law, such other time being in force law, because there is the one general principle of the interpretation of the statute that special law shall prevail over general law. Special law shall prevail over the general law. That this provision is based upon the that Latin maxims or the rule of the interpretation. Subsection 2, in particular and without prejudice to the generality of the preposition contained in the subsection first, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy, any remedy
which a landholder or landlord may have under the any law for the time being in force for recovery of rent of agriculture land from the produce of the such land. If under the any other time being in force law which is related to the recovery of the rent of agriculture land from the produce of the that land, if any remedy is provided under such law in favor of the landholder or the landlord, whether such remedy shall be affected or limited by the any provision of the civil procedure code? No. CPC, civil procedure code, shall not deem to be limit or otherwise affect the such remedy which is created in favor of the landholder or landlord to recover the arrear of the rent from the produce of agriculture land. Such remedy shall not be affected by the civil procedure code. That remedy to be continue existed and landlord can avail the such remedy according to the such law, maybe the any local law Rajasthan Tenancy Act or the any other Rajasthan Land Revenue Act or the any other state law in force in that particular state. धारा 4 जो है व्यावृत्तियां, सेविंग टाइटल है इसका, जिसको बहुत सिंपल भाषा में बचाव खंड भी कहते हैं. हमने जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ा था तो उसमें इंटरनल एड्स टू द इंटरप्रिटेशन में सेविंग क्लॉज भी पढ़ा था हमने, है ना, व्यावृत्ति खंड या बचाव खंड भी पढ़ा था. सबसेक्शन फर्स्ट देखेंगे आप, विशेष विधि या स्थानीय विधि में उल्लेखित कोई विशेष क्षेत्राधिकार, विशेष शक्ति, विशेष प्रक्रिया, उसको सिविल प्रक्रिया संहिता परिसीमित नहीं करेगी या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी. हालांकि इंग्लिश से थोड़ा सा हिंदी में अलग है. विशेष विधि या स्थानीय विधि या अन्य कोई तत्समय प्रवर्त विधि या अन्य कोई तत्समय प्रवर्त विधि, उसमें कोई विशेष क्षेत्राधिकार, विशेष शक्ति या विशेष प्रक्रिया दे रखी है तो उस विशेष विधि के प्रावधान को, उस स्थानीय विधि के प्रावधानों को और उस अन्य तत्समय प्रवर्त विधि के प्रावधानों को सिविल प्रक्रिया संहिता न तो लिमिट या परिसीमित करती है, न सिविल प्रक्रिया संहिता उसको प्रभावित करेगी. मीन्स विशेष विधि के प्रावधान, स्थानीय विधि के प्रावधान, उस तत्समय प्रवर्त विधि जिसमें विशेष क्षेत्राधिकार, विशेष शक्ति या विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, उसके प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता पर क्या रखते हैं? अधिमानी प्रभाव रखते हैं, ओवरराइडिंग इफेक्ट रखते हैं. क्योंकि निर्वचन का सामान्य नियम जो है वो हमने पढ़ रखा है कि विशेष विधि है वो सामान्य विधि पर क्या रखती है? अधिमानी प्रभाव रखती है. ये सीपीसी सिविल मैटर के बारे में जनरल लॉ है और इसके कॉन्ट्रेरी कुछ स्पेशल लॉ में, लोकल लॉ में, किसी अदर टाइमिंग इनफोर्स लॉ में दे रखा है. तो वो विशेष विधि, स्थानीय विधि और अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि जो है वो क्या है, वो लागू होगी और सीपीसी के जनरल प्रोविजन उस केस में लागू नहीं होंगे जो कॉन्ट्रेरी है उससे, जो उससे प्रतिकूल है. एंड सबसेक्शन जो 2 है, भूस्वामी के किसी भूमि के भाटक की वसूली भूमि की उपज से करने का जो उपचार है उस पर भी सीपीसी का कोई प्रतिकूल प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी. लैंडलॉर्ड जो है, भूस्वामी, जिसको अपनी भूमि जो उसने लीज आदि पे दे रखी है, किराया आदि पर दे रखी है, उसका किराया बकाया है, उसका रेंट है वो बकाया, लगान बकाया, उसकी वसूली उस कृषि भूमि में होने वाली जो उपज है, प्रोड्यूस जो है, उससे करने का उसका कोई उपचार या रेमेडी दे रखी है किसी विधि के अंतर्गत, क्या उस उपचार को सीपीसी समाप्त कर देगी? नहीं. वो उपचार उस लैंडलॉर्ड का या भूस्वामी का बना रहेगा. उस रेमेडी को, उस उपचार को सिविल प्रक्रिया संहिता न तो सीमित करेगी न उसको अन्यथा प्रभावित करेगी. वो अपने उस उपचार का प्रयोग कर सकता है. यही रिपीटेशन है जो हमने सेक्शन में पढ़ा है. डज नॉट लिमिट और अफेक्ट द एनी स्पेशल और लोकल लॉ और स्पेशल जुडिक्शन पावर और कन्फर्ड और स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर prescribed unless the specific provision to the contrary, and does not limit or affect the remedy of a landlord or landholder has for recovery of rent of agriculture land from the produce of the such land. Both these provisions shall prevail over the general provision of the civil procedure code. रिपीटेशन ये, जिसमें कोई ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, आप सीधे सेक्शन 5 पे आ जाए. एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स. कभी कभी टाइटल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी इज कंसर्न टू द एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स. एप्लीकेशन मीन्स टू अप्लाई, लागू होना.
क्या सीपीसी के प्रावधान रेवेन्यू कोड पर लागू होंगे, अप्लाई होंगे? वेयर इनके ज़्यादा फोटो खींचने की जरूरत नहीं, बैरेक्ट में लिखा उसी बात को वापस लिखा गया है, तो बैरेक्ट में लिखी हुई बात को भी आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। वेयर एनी रेवेन्यू कोड्स आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ दिस कोड in those matters of the procedure upon which any special enactment applicable to them is silent. State government has power. State government may by notification in the official gazette declare that any portions of those provision which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes or shall only apply to them with such modification as the state government may prescribe. Law related to the procedure of the revenue codes or applicable upon the revenue codes related to the procedure is silent in respect of the procedure, whether provision of civil procedure code be applicable upon the procedure of the revenue codes or upon the revenue codes not directly applied. The power has been conferred to the state government. State government by issuing the notification may apply the certain provision of the CPC upon the procedure of the revenue codes or may apply in modified form with certain changes. The state government may apply directly the provision of the CPC or with modification. This power has been conferred to the state government under the subsection 1st of section 5 of the civil procedure code. Though state government has power that to make declaration that these provision of CPC do not apply. These provision of CPC do not apply upon the revenue code. Such type of the declaration can be made by the state government. This provision or these provision shall be applied directly and these provision applies with this modification. These type of the declaration can be made by the state government by notification under the subsection 1st of the section 5 of civil procedure code. And what is the meaning of the revenue code? That is explained or defined under the subsection 2 of section 5 of civil procedure code. Revenue code in subsection 1st means a court having the jurisdiction under any local law to entertain the suits or other proceedings relating to the rent, revenue or profits of the land used for agricultural purposes, but does not include a civil court having the original jurisdiction under this code to try the such suits or proceeding as being the suits or proceeding of a civil nature. What is the meaning of the revenue code? Revenue code means a court having the jurisdiction under any local law to entertain the suits or other proceeding relating to what? Relating to the rent, revenue or profits of the land used for agricultural purposes. That court is known as revenue court. The court which having the jurisdiction under the local law to entertain the suits or proceeding related to the rent, revenue or other profit of the agricultural land, that court is known as revenue court. But the civil court has the original jurisdiction to entertain the suit or proceeding related to the suit of civil nature, that civil court does not cover under the definition of the revenue code. For example, if the civil court has jurisdiction to entertain the suit for cancellation of the sale deed of agricultural land, and that issue cancellation of the sale deed is the issue of the civil nature, so civil code does not become a revenue code within the meaning of the subsection 2 of the section 5 of the civil procedure code. Though civil court entertain the suit related to the agricultural land, but involvement of the civil issue in that suit, therefore the civil court continue to be a civil court and not automatically becomes a revenue code for the purpose of section 5 of the CPC. संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना, सिविल प्रक्रिया संहिता जो है ये राजस्व न्यायालय को लागू होगी या नहीं, इस बारे में धारा 5 में प्रावधान है। राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया के संबंध में उन पर लागू होने वाली विशेष विधि या अधिनियमिति जो है वो मौन है। संबंधित राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सीपीसी के प्रावधान लागू होने की घोषणा कर सकती है। उन अनुकूलना और उपांतरणों के साथ लागू होगी जैसा वो उचित समझे, और लागू नहीं होने के संबंध में भी घोषणा कर सकती है।
राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया के संबंध में उन पर लागू होने वाली विशेष विधि प्रक्रिया के बिंदु पर क्या है, साइलेंट है या मौन है। क्या सीपीसी की प्रक्रिया उन राजस्व न्यायालयों पर लागू हो सकती है? डायरेक्ट लागू नहीं होगी। राज्य सरकार को पावर दिया कि संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके सीपीसी के प्रावधान जो है उन पर लागू कर सकती है, या ये प्रावधान लागू नहीं होंगे ऐसी घोषणा भी कर सकती है। ये प्रावधान लागू होंगे, ये कुछ मॉडिफिकेशन आदि के साथ लागू होंगे, कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, ऐसी घोषणा भी राज्य सरकार कर सकती है। और ये प्रोविजन तो लागू ही नहीं होंगे, ऐसी घोषणा भी है वो राज्य सरकार कर सकती है। दोनों प्रकार की घोषणाएं करने की राज्य सरकार को धारा 5 की उपधारा 1 में शक्ति दी गई है। सबसेक्शन 2 जो है उपधारा 1 में राजस्व न्यायालय, उपधारा 2 के अंदर जो है राजस्व न्यायालय को परिभाषित किया गया कि उपधारा 1 में जो राजस्व न्यायालय शब्दावली यूज दी गई है, इस राजस्व न्यायालय शब्दावली का अर्थ या परिभाषा क्या है, ये उपधारा 2 में क्लियर किया गया। राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक, राजस्व या लाभों, इनसे संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों के ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है, वो न्यायालय वो क्या है, राजस्व न्यायालय। कृषि भूमि से संबंधित जो है वो राजस्व है, लगान है या अन्य कोई लाभ है, उनसे संबंधित वाद और जो कार्रवाइयां हैं उनको सुनने की, उनको ग्रहण करने की है वो क्षेत्राधिकार जिस न्यायालय के पास है, वो न्यायालय वो किस विधि के अंतर्गत, लोकल लॉ में, स्थानीय विधि के अंतर्गत वो न्यायालय वो क्या कहलाएगा, वो राजस्व न्यायालय वो कहलाएगा। मीन्स उसका कनेक्शन एग्रीकल्चर लैंड से, किससे है, कृषि भूमि से। और कृषि भूमि में भी किस तरीके के दावे, राजस्व से संबंधित, लगान से संबंधित, अन्य लाभ से संबंधित जो वाद और कार्रवाइयां हैं उनको किसी विशेष विधि के अंदर, स्थानीय विधि के अंतर्गत जो है उन वादों को सुनने की और अवधारित करने की या ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार जिस न्यायालय के पास है वो क्या है, वो राजस्व न्यायालय। चाहे वो नायब तहसीलदार का कोर्ट है, चाहे वो तहसीलदार का कोर्ट है, चाहे वो एसडीओ का कोर्ट है, चाहे वो असिस्टेंट कलेक्टर का कोर्ट है, चाहे वो कलेक्टर का कोर्ट है, चाहे वो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी है, चाहे वो जो है वो रेवेन्यू बोर्ड है, चाहे वो कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर का कोर्ट है, चाहे वो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, चाहे वो सेटलमेंट कमिश्नर है, चाहे वो सेटलमेंट ऑफिसर है, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, इनमें से कोई भी न्यायालय जो है वो क्या है, ये सारे रेवेन्यू कोर्ट्स है। क्या है ये सभी राजस्व न्यायालय। जब आप लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 जो आपके सिलेबस का पार्ट है पढ़ोगे तो ये सभी न्यायालय वहाँ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। और टेनेंसी एक्ट के अंदर जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है उसमें सेक्शन 535 कहीं नोट कर रखा होगा मैंने आगे, 535 में जो है, यस 535 जो है टेनेंसी एक्ट में, इसमें रेवेन्यू कोर्ट की डेफिनेशन भी दे रखी है। Where special enact applicable to the revenue court is silent in terms of procedures, in respect of procedure, the state government by notification may declare that any provision of those provisions which are not expressly made applicable by this court shall not apply to those courts. Such type of the declaration can be made by the state government, apply with the such modification as the state government prescribe. That this second declaration can be made by the state government under subsection 1st of section 5. Fourth schedule of the Rajasthan Tenancy Act 1955. There are 4 schedules annexed with in the Rajasthan Tenancy Act 1955. Fourth schedule is related to the section 5, which contain the 2 lists. The fourth schedule of the Rajasthan Tenancy Act 1955 contain the 2 lists concerning the sections and order of CPC which do not apply to the suit or proceeding under this act. The 2 lists. The one list that is related to these provision of the CPC do not apply, and second list these provision of the CPC applied with this modification. The 2 separate lists are provided under the 4th schedule of the Rajasthan Tenancy Act 1955, and that schedule is directly related to the section 5 subsection 1st of the Civil Procedure Code. What is the meaning of revenue court? पढ़ लिया हमने, वही मीनिंग है इसका। और रेवेन्यू कोर्ट की डेफिनेशन राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में कहां दे रखी है, 535 में। राजस्व न्यायालय पर लागू होने वाली विशिष्ट विधि प्रक्रिया के बारे में मौन है, तो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा
यह घोषणा कर सकती है कि उन प्रावधानों में से कोई भी भाग इस संहिता द्वारा उपयुक्त रूप से उस पर लागू नहीं किया गया है वो उन न्यायालयों पर लागू नहीं होगा, ये घोषणा भी कर सकती है, और कुछ परिवर्तनों या उपांतरणों के साथ लागू होगा, ऐसी घोषणा भी राज्य सरकार कर सकती है। और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की चौथी अनुसूची में सिविल प्रक्रिया संहिता के धाराएं और आदेशों के बारे में 2 सूचियां दे रखी है अलग अलग, जो इस अधिनियम के अंतर्गत के मामलों पर है वो लागू नहीं होती या कुछ उपांतरणों के साथ लागू। एक लिस्ट तो वो दे रखी है कि ये ऑर्डर्स और सेक्शन तो सीपीसी के लागू ही नहीं होंगे। टीनेंसी एक्ट की जब 4th शेड्यूल खोल के देखोगे तो कुछ ऑर्डर्स दे रखे कि ये ऑर्डर और जो है वो रूल और ये सेक्शन जो है वो सीपीसी के ये तो लागू ही नहीं होंगे। और दूसरी लिस्ट उसमें दे रखी है 4th शेड्यूल में, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन बता रखे हैं कि इन परिवर्तनों के साथ ये जो है वो सेक्शंस और ये ऑर्डर है वो और रूल है वो लागू होंगे। इस तरीके की 2 सूचियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की चौथी अनुसूची में दे रखी है, उसका कनेक्शन इस धारा 5 की उपधारा 1 के साथ है। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, बेक या बैक, pecuniary jurisdiction. So many times direct question asked from the heading or title of this provision in objective paper. Which one of the following provision of CPC deals the pecuniary jurisdiction? Section 6. 7. So far as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over the suits, the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits, if any, of its ordinary jurisdiction. Whether a court can entertain any suit in original jurisdiction which is exceeding the pecuniary limits of that court? No. It is prohibited or barred under section 6 of the civil procedure. Court shall not entertain any suit which is exceed the pecuniary limits of that court. That is prohibited under section 6, means the court must entertain the suit within the limits of the pecuniary jurisdiction of the concerned court. And what are the limits of the pecuniary jurisdiction of the civil courts in Rajasthan? The initial court, that is the court of civil judges. What is the limit of the pecuniary jurisdiction of that court? Up to 2 lakh rupees. The value of the 2 lakh rupees suits can be entertained by the court of civil judges. And what about the court of senior civil judges? 2 lakh and 1 rupees to 5 lakh. 2 lakh and 1 rupees to 5 lakh. This is the pecuniary limit for the court of senior civil judge. And what is the limit for district court? Above 5 lakh. If the valuation of the suit is above 5 lakh rupees, then the original jurisdiction to be exercised by the district court. धारा 6 जो है धन संबंधी अधिकारिता, टाइटल और हेडिंग से जैसा मैंने पहले बताया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ सेक्शन 6 से। धन संबंधी अधिकारिता से बाहर किसी भी न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है सिवाय अभिव्यक्त प्रावधानों के। कोर्ट की जो कुछ भी आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमाएं वो तय की गई है, धन संबंधी क्षेत्राधिकार की सीमाएं तय की गई है, उससे बाहर के मूल्य के वाद को, उससे बाहर के राशि के वाद को क्या कोर्ट जो है वो एंटरटेन कर सकता है, सुन सकता है, डिसाइड कर सकता है? नहीं। जो उसकी धन संबंधी अधिकारिता की सीमाएं निर्धारित की गई है, उस सीमाओं के भीतर का कोई दावा है, वाद है, उसको सिविल कोर्ट सुन सकता है, डिसाइड कर सकता है। यदि उससे बाहर का जो है उस लिमिट को क्रॉस करके कोई दावा है या वाद है, वो सुनना धारा 6 के अनुसार कोर्ट के लिए क्या है? वर्जित है। राजस्थान के अंदर सिविल न्यायालयों की आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमाएं जो है वो क्या है? सिविल न्यायाधीश का जो न्यायालय है, कोर्ट ऑफ सिविल जज, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जिस पद की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब पोस्टिंग होगी सिविल जज के रूप में, तो आप कितने रुपए तक की राशि के जो दावे हैं उनको सुन सकते हैं? 2 लाख रुपए तक के। कितने? 2 लाख रुपए तक के मूल्य या राशि के जो मामले या दावे वो आप सुन सकते हैं सिविल न्यायाधीश के रूप में। और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का जो न्यायालय है उसका जुरिस्डिक्शन या पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो क्या है?
2 लाख तो उसमें आएगा, एग्जैक्ट 2 लाख रुपीज का जो क्लेम है वो सिविल जज के जुरिस्डिक्शन में। 2 लाख और 1 रुपए से लेके जो है 5 लाख रुपए तक का मूल्य और राशि का जो दावा है वो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के द्वारा सुना जा सकता है। और यदि दावा 5 लाख रुपए से भी अधिक राशि का हो तो उस कंडीशन में 5 लाख रुपए से अधिक के मूल्य या राशि का कोई दावा है तो किसका है वो जुरिस्डिक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायाधीश या जिला न्यायालय का जो है वो जुरिस्डिक्शन है होगा। ये आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमाएं राजस्थान के अंदर है वो निर्धारित है। अब मान लो ये सिविल जज का कोर्ट है, इसमें 3 लाख का दावा कोई पेश किया गया, इनिशियल जो कोर्ट है सिविल जज का कोर्ट, उसके सामने है वो 3 लाख मूल्य का कोई सूट है वो इंस्टीट्यूट किया गया, क्या सिविल न्यायाधीश का न्यायालय उसको सुन सकता है? नहीं, सेक्शन 6 प्रोहिबिट करता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए तक ये, और ये दावा उससे एक्सीड है वो वैल्यू का है, उससे अधिक मूल्य का है, तो ये सूट नहीं सुना जा सकता सिविल न्यायाधीश के लिए द्वारा। उसके लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो कौन सा है? सीनियर सिविल जज, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय जो है वो इस दावे को सुन सकता है। एक बात और है इसमें कि ये जो सिविल जज और सीनियर सिविल जज के जो पिक्यूनियरी जुडिक्शन के दावे हैं, ये उससे हायर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सुन सकता है। जो सिविल जज और सीनियर सिविल जज के द्वारा एंटरटेने वाले सूट्स उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन सकता है, और उसने डिसाइड भी कर दिया तो वो विदाउट जुडिक्शन नहीं माना जाएगा, वो विदाउट जुडिक्शन नहीं माना जाएगा, वो कॉम्पिटेंसी कंसीडर होगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन सकता है। बट वाइस वर्सा करेक्ट नहीं है, एक जो है सुपीरियर कोर्ट का जो जुडिक्शन है उसका इंफीरियर कोर्ट उस एबो वैल्यू के सूट को जो है वो नहीं सुन सकता, और यदि ऐसा सुना गया है तो वो डिक्री नल एंड वॉइड होगी। क्या होगी? आर्थिक क्षेत्राधिकार से बाहर की कोई दावा सुना गया है, नल एंड वॉइड नहीं होगी तो ऐसा हो सकता है उसमें जो है इनवैलिड होगी, अविधिमान्य होगी, जिसको अपील या रिवीजन में सेट असाइड किया जा सकता है, अपास्त है वो किया जा सकता है। और ये जो आपने सीमाएं पढ़ी अभी 2 लाख 1 से लेकर 5 लाख और 5 लाख से अधिक, ये पहले 25,000, 50,000 और 50,000 से अधिक थी। क्या थी? उसको लिखना नहीं है, अभी आपको वर्तमान में वही याद रखनी है। 2014 से पहले जो है जूनियर डिवीजन नाम हुआ करता था कोर्ट का, जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन, उसका जुडिक्शन 25,000 रुपये तक के वैल्यू के सूट का था। और सीनियर सिविल जज जो है ये सीनियर डिवीजन हुआ करता था, इसका जुडिक्शन 25,001 रुपये से लेकर और 50,000 रुपये तक का हुआ करता था। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुडिक्शन 2014 से पहले राजस्थान में 50,000 रुपये से ज़्यादा के वैल्यू की जो सूट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो संस्थित होते थे। तो ये सीमाएं कौन से संशोधन से जो है, ये सिविल न्यायालय संशोधन अधिनियम 2014 पारित किया गया राजस्थान स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, और इन सीमाओं को बढ़ाकर जो है 25,000 वाले को 2 लाख, 50,000 वाले को 5 लाख और 5 लाख से अधिक है वो कर दिया गया। क्या हाईकोर्ट को भी ओरिजिनल जुडिक्शन है? कुछ हाईकोर्ट भी है, कलकत्ता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, उनको ओरिजिनल जुडिक्शन है। ये मेरा पुराना लिखा हुआ है, जब मैं तैयारी कर रहा था 12-13 का, उस समय का 10 लाख है, यह अब 1 करोड़ आसपास होगा, क्योंकि ये टाइम टू टाइम बढ़ता भी रहता है। आप गूगल से थोड़ा इस पर पता कर लें। बट कलकत्ता हाईकोर्ट का भी ओरिजिनल है वो जुडिक्शन है, वो इस मूल्य से अधिक का कोई दावा है उसको सुनने का ओरिजिनल जुडिक्शन है वो रखता है। और इसी तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट जो है उसको भी सिविल मामला में ओरिजिनल जुडिक्शन जो है, ओरिजिनली सूट दिल्ली हाईकोर्ट में एक वैल्यूएशन जो भी दे रखा है कुछ करोड़ ही होगा उसमें, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ एटसेट्रा जो है, उससे अधिक के दावे जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट भी वो सुन सकता है। अब ये उनका क्या है पिक्यूनियरी लिमिट्स जो है, ये आपको वो लेटेस्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला आंकड़ा बहुत पुराना है। ये 12-13 के आसपास जब हम तैयारी कर रहे थे तब हमने ढूंढ के लिखा था कहीं से कि इतना है, तो ये समय समय पर बढ़ता रहता है। जैसे 25,000 से 2 लाख हो गया, तो ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए इसमें हमने आगे पता नहीं किया। बट आपको बीइंग ए गुड स्टूडेंट है वो पता रहना चाहिए कि इनका ओरिजिनल जुडिक्शन है वो कलकत्ता हाईकोर्ट का 1 करोड़, और दिल्ली हाईकोर्ट भी देखना आप 2 करोड़ से ज़्यादा की यदि वैल्यूएशन का कोई सूट है तो उस कंडीशन में जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन है। राजस्थान हाईकोर्ट का सिविल मैटर में ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है वो 5 लाख से ज़्यादा की वैल्यू का, जहाँ तक भी मैथमेटिक आती है आपको, लास्ट क्या है, पदम है क्या, अरब, खरब, नील है ना, पदम एटसेट्रा, जहाँ तक भी है वो
जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है या काउंटिंग एग्जिस्ट करती है वहाँ तक का दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ही सुना जाएगा। ये यहाँ तक तो हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, है ना, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब, फिर मिलियन। मिलियन भी आता है ना? नहीं, मिलियन उसका है, 10 लाख कोई कहते हैं मिलियन, मिलियन 10 लाख को कहते हैं। तो उसके बाद जो है वो जो भी है लास्ट से लास्ट पदम होगा। कल बताया था, किसने बताया था? सुना था मैंने किसी के मुंह से कि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा पदम है। तो एक पदम और एक दूसरा क्या, मणि, ऐसा कोई नाम आया था ना, किसी का नाम, क्या अर्थ होता है ऐसा करके, कहीं यूट्यूब वीडियो में सुना होगा, यहाँ नहीं डिस्कस हुआ। तो पदम मणि ऐसा कहीं कोई नाम आया था, उन्होंने कहा ये पदम तो मैथमेटिक्स में सबसे है वो बड़ी इकाई है, बस इससे ज़्यादा फिर ये लास्ट है। और मणि का भी कोई उन्होंने मोती नहीं, कुछ दूसरा अर्थ है वो बताया था। तो ऐसा करके उन्होंने एक्सप्लेन किया था जो है।